Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is Navratan, your English teacher, and I have brought for you another chapter, another video of the lesson Footprints Without Feet. Students, I welcome you to RPS online classes. You know that our school is running online classes for you in this time of lockdown. So, students, you must pay attention towards this. In class 10th, this chapter 5 of the book Footprints Without Feet, this is the title lesson. The title of the book is Footprints Without Feet, and this is the fifth lesson of the book. Let us read this. You imagine, students, footprints without feet. Is it possible? बिना पैरों के footprints हो सकते हैं? This is very interesting story. This is a novel which was written by H.G. Wells. H.G. Wells ने एक novel लिखा था, and it was written. The story was about a scientist. The scientist was invisible. The scientist was invisible. His name was Griffin. Anyhow, he managed to disappear. Managed to get transparent. Actually, his body became as transparent as glass and as solid as glass. Transparent भी थी और solid भी थी, ठीक है. But he was a lawless person who had no respect for the law. So this story is about Griffin, a scientist, a great scientist, we can say. He could do a lot for the human beings. This is an imaginary story of H.G. Wells, who was a great novelist and great author. But this story will tell us how science could be used for the destruction in the world. Science को नुकसान करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. So a person who is a scientist, he can serve the humanity, and if he is not a good person, he can destroy the humanity. So this was written before around maybe 100 or around 200, 1719 around, I think it was written. 18, it means around 200 years ago it was written, and it was imagined. We can say it was imagination of H.G. Wells about the misuse of science. तो blindly साइंस के पीछे भागना और उसको जो ना एक गलत तरीके से रिसर्च करना भी, इट इज़ अ डेंजर टू द ह्यूमैनिटी. यही इस लेसन में डिस्कस किया गया है. चलिए कहानी पढ़ते हैं ग्रिफिन की, जो कि गायब हो गया था. क्वेश्चन इसने आपसे किया है कि कैन आई बिकम इनविजिबल. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी. यही तो क्वेश्चन है, यूज करता है या मिसयूज करता है. रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. कैसे विजिबल हुआ. वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स. क्यों वो गलियों में यहाँ वहाँ घूम रहा था. The two boys, let me read it. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints on a pair of barefoot. नंगे पैरों के मडी इम्प्रिंट्स, कीचड़ से भरे हुए निशान दो बच्चों ने देखे. टू स्टूडेंट्स वर थे, उन्होंने नोटिस किया एक सीढ़ी के ऊपर, वाइट जो सीढ़ियाँ थी उनके ऊपर. What was a barefooted man doing on the steps of a house? Barefooted man कर क्या रहा था स्टेप्स के ऊपर. In the middle of the London. And where was the man? आदमी कहाँ है. यानी फुट स्टेप्स तो दिख गए, आदमी तो है ही नहीं. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे उन्होंने बड़े ध्यान से देखा उसको, एक remarkable sight है ना उनकी आंखों के सामने आ गई. A fresh footmark appeared from nowhere. और एक फुटमार्क और हो गया फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से एक निशान और हो गया. एक्चुअली ग्रिफिन इनविजिबल था. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स. सो व्हेन द स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट हिम, तो स्टूडेंट्स कुड नॉट सी ग्रिफिन, बट ग्रिफिन कुड सी द चिल्ड्रन. जो दो बॉयज थे उनको वो देख सकता था, इसलिए वो नीचे उतरा तो फ्रेश फुटप्रिंट्स बन गए, निशान बन गए. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर द अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स. यानी फुट स्टेप्स बनते चले गए एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स, नीचे उतरना द स्टेप्स, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सीधे स्ट्रीट में आ गए. यानी निशान आते चले गए, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते और गली के अंदर आ गए.
द बॉयज फॉलोड, बच्चों ने फॉलो किया. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स होता है सरप्राइज्ड. अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो जो मडी इम्प्रेशंस थे, जो कीचड़ के इम्प्रेशंस थे, निशान थे, वो फेंटर यानी धुंधले और धुंधले नहीं हो गए, बिल्कुल धीरे धीरे. अब वो कीचड़ लगा हुआ था, धीरे धीरे उतरता चला गया और उनके जो निशान थे वो धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, है ना. इस मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन सिंपल है. द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. ये जो बिविल्डर्ड मतलब सरप्राइज जो बॉयज थे, हैरान परेशान बॉयज थे, ये किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाएगा, और जिस चीज़ के आर पार आपको दिखेगा वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. बहुत एक्सपेरिमेंट किए उसने ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल यानी अदृश्य किया जा सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs. swallowed मतलब गटक जाना, खा जाना. उसने ड्रग्स यानी दवाइयाँ, रेयर ड्रग्स खाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, एंड दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. यानी ग्लास की तरह हो गई, आर पार दिखना शुरू हो गया, लेकिन वो ठोस थी, सॉलिड थी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन है. ही वॉज रादर लॉलेस पर्सन. बिल्कुल लॉलेस कौन होता है? जो लॉ का बिल्कुल भी आदर नहीं करता है, जो कानून का सम्मान नहीं करता है, यानी कि जो नुकसान करता है, कानून को तोड़ता है. His landlord disliked him. Landlord मतलब जहाँ पे वो किराए पे रहता था. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject मतलब घर से बाहर निकालना. भाई अगर हमें हमारा किराएदार पसंद नहीं है तो हम उसको सिंपली कह देंगे कि भाई घर खाली कर दो. तो ये लैंडलॉर्ड था ग्रिफिन का. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इजेक्ट और गेट ग्रिफिन आउट ऑफ हिज हाउस. इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. उसके घर को आग लगाई. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. और वहाँ से निकलने के लिए वो ही डिड नॉट वांट टू बी सीन बाय एनीबडी, किसी कोई को देखे नहीं, तो उसको कपड़े उतारने पड़े अपने, क्योंकि कपड़ों के साथ वो दिखता था, बिना कपड़ों के वो नहीं दिखता था. यानी हिज बॉडी वॉज ट्रांसपेरेंट. बॉडी भले ही ट्रांसपेरेंट थी, ये क्लियर था, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि कपड़े पहनते ही वो विजिबल हो जाता था. यानी कपड़े विजिबल हो जाते थे, ग्रिफिन विजिबल नहीं होता था. Thus it was that he became a homeless wanderer. homeless बेघर wanderer मतलब यहाँ वहाँ धक्के खाने वाला ट्रैम्प, घुमक्कड़ कह सकते हैं. विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, बेयर नेकेड वो घूमता रहता था. विदाउट मनी, ना पैसे उसके पास थे. क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल इनविजिबल. until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. यानी सबके लिए इनविजिबल था. हालांकि वो हल्का सा विजिबल कब हुआ, लोगों को कब पता चला? जब उसने, उसका पैर कीचड़ में पड़ गया और उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो निशान देने लग गए, तो लोगों ने उसको नोटिस किया. अदरवाइज नोबडी न्यू दैट देयर वाज समबडी वॉकिंग विद द पीपल हु वाज इनविजिबल. विद द पीपल, अ पर्सन, अ साइंटिस्ट हु वाज इनविजिबल. ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, है ना. बॉय से तो बच के निकल गया वो. हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. उसके एडवेंचर्स, उसकी कहानियाँ, किस्से ओवर नहीं हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, है ना. बाय नो मीन्स मतलब बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए थे, बाय नो मीन्स. ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स. गलत समय चुना था उसने लंदन की गलियों में घूमने के लिए. इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल सर्दियों के बीच का समय था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. बिना कपड़ों के काम नहीं चला सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर ऑफ वार्मथ, फॉर वार्मथ. एक बड़ा सा लंदन में स्टोर था, डिपार्टमेंटल स्टोर था, बड़ी सी शॉप कह सकते हैं. उसमें घुस गया वो, किसके लिए? वार्मथ के लिए, क्योंकि उसके पास कपड़े तो थे नहीं. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. क्लोजिंग टाइम, जब उस डिपार्टमेंटल स्टोर का, दुकान का क्लोजिंग टाइम आया, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू द एक्सपेंस. जैसे ही वो दरवाजे बंद हुए तो बड़ा आसान हो गया उसके लिए. उसने अपने आप को बड़ा प्लेजर दिया, किस? क्लोथिंग और फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी बिना खर्चे की परवाह किए.
अब वो खर्चे की यहाँ परवाह क्यों करेगा, एक्सपेंस की परवाह क्यों करेगा, ज़रूरत ही नहीं है। ही वॉज इनविजिबल, पैसे उसको देने हैं ही नहीं। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, सारे बॉक्सेस खोले, रैपर्स फाड़े, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स पहन लिए, फिट जो उसको आए। सून विद शूज, एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रीम्ड हैट, है ना, विजिबल, बड़ा शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एक वाइड ब्रीम्ड हैट पहन ली, मतलब जो जिसके बड़े चौड़े किनारे होते हैं, ऐसे एक हैट पहन ली उसने। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, ड्रेस भी पहन ली, विजिबल पर्सन हो गया वो। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, कोल्ड मीट और कॉफ़ी खाने पीने को मिला उसको, मीट खाने को मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि ये बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसमें वाइन भी थी, तो उसने स्वीट्स भी ली, वाइन भी ली ग्रोसरी स्टोर में से, और बड़े मन से उसने एंजॉय किया अपना फूड। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्टेप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, सेटल डाउन यानी सो गया वो किस पे, एक पाइल मतलब ढेर, और क्विल्ट्स बहुत सारी थी, जो क्विल्ट्स थी, रजाइयाँ जिनको हम कहते हैं, रजाई जिसको कहते हैं, उनके ढेर पे जाके वो सो गया। बड़ी नींद, चैन की नींद, पूरा दिन का परेशान था, घूम रहा था, ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, तो ही स्टार्टेड टेकिंग रेस्ट, सोने लग गया, सो गया वहाँ पे। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर, है ना, ग्रिफिन हैड मैनेज्ड वेक अप इन गुड टाइम, यानी अगर टाइम से उठ जाता, समय से पहले उठ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक्चुअली वो लेट हो गया। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप टिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो असिस्टेंट्स पहुंचे दुकान को संभालने वाले, तब तक बेचारा सो ही रहा था। When he saw a couple of them, और जब वो उठा तो उसने देखा असिस्टेंट आ चुके हैं, और जब उन्होंने couple of them, उन असिस्टेंट्स को देखा, तो क्या हुआ, अप्रोचिंग, when he saw them approaching मतलब उसके पास आते हुए देखा, अप्रोचिंग मतलब पास आना, he panicked, वो डर गया, पैनिक मतलब डर जाना, he began to run, भागना शुरू किया। they naturally gave chase, अब उन्होंने भी उसको पकड़ना शुरू किया कि भी हमारी शॉप में who is this person। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और वो कहाँ से बचने का एक तरीका था उसके पास, जो न्यूली फाउंड क्लोथ्स से जो उसने कपड़े मिले थे उसको, ही हैड टू टेक ऑफ ऑल दोज, निकालने पड़े, और फिर वो भाग गया वहाँ से। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, यानी वो बच तो गया वहाँ से, लेकिन फिर से इनविजिबल हो गया, बाहर आ गया, और बिल्कुल नेकेड था, बिना कपड़ों के, चिल जनवरी एयर में, यानी जनवरी की जो हवा थी बड़ी ठंडी, उसमें वो फिर से आ गया वहाँ पे। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी कौन सी होती है भाई, जो कॉस्ट्यूम्स बनाती है, जो सीरियल्स करते हैं एक्टर्स के लिए, जो उनके कॉस्ट्यूम्स बनाती है, तो उस थिएट्रिकल कंपनी के अंदर घुस गया वो, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स। अबोव एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, अब उसने कपड़े पहन लिए, तो मुंह पे तो कपड़े पहनता नहीं है कोई, फेस तो उसका ढकता नहीं है, तो शोल्डर्स के ऊपर वो एम्प्टी स्पेस रह जाता है, जहाँ तक आपकी स्लीव्स आ जाएगी शर्ट की, आगे जो हाथ बच जाता है वो भी एम्प्टी हो जाता। तो इस तरीके से उसने डिसाइड किया कि वो किसी तरीके से कुछ ऐसा करे, उसको कपड़े भी मिलें और खाना भी मिल जाए उसको। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड टू ड्रूरी लेन, ये जगह का नाम क्या था, ड्रूरी लेन, जहाँ पे वो घुसा था, थिएट्रिकल कंपनी थी, उसका नाम था शॉप का ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये जो जगह थी, जगह का नाम था ड्रूरी लेन, और यहाँ पे एक सेंटर थी, मतलब यहाँ पे थिएटर वर्ल्ड मतलब थिएटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहीं पे मिलती थी। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, एक शॉप मिल गई उसके अंदर, ड्रूरी लेन के अंदर उसको। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, ऊपर गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। अपने आप को उसने क्या किया, कवर कर लिया, यानी सिर के ऊपर, माथे के ऊपर क्या किया उसने, बैंडेजेस से कवर किया अपने आप को, ताकि लोगों को लगे कि भाई इसके तो फॉरहेड पे चोट लगी हुई है, बैंडेज लगाई। डार्क ग्लासेस पहन लिए ताकि उसकी आंखें किसी को दिखे नहीं। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाई।
बिग बूशी साइड विस्कर्स, साइड में जो है ना उसने बड़े बड़े वो पहन लिए जो साइड बर्न्स होते हैं, जिसको हम कलम बोलते हैं, साइड में सिर के जो बाल होते हैं कान के नीचे। एंड अ लार्ज हैट, बड़ी सी उसने एक हैट पहन ली अब अपने आप को छुपाने के लिए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर। अब उसने सोचा कि एस्केप होता बचना, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को दिखाई दिए बचने के लिए उसने क्या किया, ही कैलेसली अटैक, कैलेसली मतलब बड़े ही निर्दयता से, क्रूर तरीके से, है ना, ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, शॉपकीपर को उसने पीछे से वार किया, विच ही रॉब्ड हिम, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर उसने उसको रॉब किया, लूट लिया, जो भी पैसे उसको मिले वहाँ से उसने लूट लिए और वहाँ से वो निकल गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. अब यहाँ से वो निकल गया, क्राउडेड लंदन की गलियों में तो उसका काम चलने वाला था नहीं, उसने ट्रेन पकड़ी और वो एक ईपिंग, एक विलेज था जिसका नाम था ईपिंग विलेज, वहाँ पहुँच गया। वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द होटल लोकल इन, एक लोकल से इन जिसको सराय कह सकते हो, होटल कह सकते हो, रेस्टोरेंट कह सकते हो, वहाँ पे उसने 2 रूम लिए, 2 रूम उसने बुक कर लिए वहाँ पे जाने के बाद, यानी शहर की भीड़ से दूर, from the away from the crowds of the city, he went to a lonely place to get some solitude, एकांत के लिए, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब ये arrival of a stranger in the in an at an inn in winter, यानी सर्दियों में इन मतलब क्या होती है, सराय होगी, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस कह लो, कुछ भी, गेस्ट पार्लर कह लो, ये अपने आप में एक अनयूजुअल इवेंट था गांव वालों के लिए, क्योंकि ये सीज़न नहीं था। उस गांव के अंदर, ईपिंग के अंदर जितने भी लोग आते थे, दे यूज टू कम इन समर, नॉट इन विंटर एक्चुअली, एंड सो ही केम इन विंटर, इन ऑफ सीजन, सो इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, इट वॉज अनयूजुअल एक्चुअली। A stranger of such uncommon appearance, स्ट्रेंजर भी था और अनकॉमन अपीयरेंस का था। अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस जो इंसान का जो हुलिया होता है, जो रूप होता है, वो बड़ा अनकॉमन था। जिस तरीके से उसने बैंडेजेस लगाई, चश्मे लगाए, सब। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, टंग्स वैगिंग का मतलब होता है ज़बानें चलने लगी, बातें होने लगी, लोगों की जीभें हिलने लगी, मतलब लोग बातें करने लगे कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब मिसेस हॉल जो थी वो लैंडलॉर्ड की थी, वो लैंडलॉर्ड जो था उस सराय का, उसकी वाइफ थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ, यानी जिसका वो गेस्ट पार्लर था। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बड़ी कोशिश की ताकि वो स्ट्रेंजर के साथ में फ्रेंडली हो जाए। वो फ्रेंडली क्यों होना चाहती थी, क्योंकि उसको बड़ी मुश्किल से गेस्ट मिला था जो कि उसके मन चाहे पैसे उसको दे रहा था, इसलिए शी वांटेड टू बिकम फ्रेंडली विद ग्रिफिन। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, कोई डिज़ायर बात करने की नहीं थी, और उसने उसको कहा, माई रीजन्स फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, यानी एकांत। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड मतलब मेरा यहाँ आने का एक ही मतलब है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, उसने कहा कि एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है वो ख़राब हो गया है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मुझसे कोई बात नहीं करे। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, उसको ये लगा कि उसका जो गेस्ट है वो एक सनकी आदमी है ना। सनकी आदमी क्या होता है, बड़ा चिड़चिड़ा सा होता है, एक काम में लग गया तो उसी में लगा रहता है, किसी बात को मानता नहीं है, एक्सेंट्रिक। तो उसको लगा कि वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने ये भी सोचा कि उसने तो उसको एडवांस में पे कर रखे हैं पैसे। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसिज हॉल ने क्या किया, वो तैयार हो गई किसके लिए, उसको एक्सक्यूज कर दिया, माफ़ कर दिया उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को, हैबिट्स को, और इरिटेबल टेम्पर को। टेम्पर मतलब जब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इरिटेबल टेम्पर का बंदा कौन होता है, इरिटेटिंग बंदा होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो चूंकि उसको एडवांस में पैसा मिला, तो मिसेस हॉल ने क्या किया, शी इग्नोर्ड एवरीथिंग, शी वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज एवरीथिंग। उसकी जितनी भी अजीब अजीब हरकतें थी, आदतें थी, उसका अपीयरेंस था, उसने उसको अवॉइड करने की कोशिश की। शी थॉट दैट ही वॉज पेइंग हर मनी, और वो भी एडवांस में उसको पैसे पे कर रहा था। बट द स्टोलन मनी
डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब वो जो पैसे चुरा के लेके आया था वो लंबे समय तक चली नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास रेडी कैश था नहीं देने के लिए। जो लेके आया था, लूट के लेके आया था, रॉब करके लेके आया था ड्रूरी लेन में शॉपकीपर से, तो वो तो दैट वाज ओवर। ही प्रिटेंडेड, तो उसने बहाना किया, प्रिटेंड होता है बहाना करना। हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, क्या बहाना किया कि उसको चेक मिलने वाला है और वो कभी भी आ सकता है और वो पेमेंट वापस कर देगा। तो ये इसका एक वे था ताकि मिसेस हॉल जो है ना उसे पैसे ना मांगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, कुछ समय के बाद में एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड हुआ। क्यूरियस मतलब बड़ा ही अजीब सा, एपिसोड मतलब घटना घटी वहाँ पे अकर्ड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज। एक वहाँ पे एक्चुअली विकारेज था, चर्च हम कह सकते हैं उसी गांव के अंदर। उसका जो क्लर्जी मैन था, जो प्रीस्ट था, जैसे पंडित होता है मंदिर में, और उसकी वाइफ वो सुबह सुबह जल्दी उठ गई, अवेकन्ड बाय नॉइजेस, शोर सुन के उठे, इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो धीरे धीरे नीचे आए, क्रीपिंग मतलब बिना कोई नॉइज़ किए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी मतलब पैसे की आवाज़, जैसे हम कॉइन्स को बजाते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, कहाँ से निकाले जा रहे थे वो, क्लर्जी मैन के डेस्क से। यानी क्लर्जी मैन ने ये महसूस किया कि उसका जो डेस्क है उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, समबडी वो स्टीलिंग मनी, पैसे निकालने की आवाज़ आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ एंड विद अ पोकर, बिना कोई नॉइज़ किए, विद अ पोकर मतलब एक मोटा सा डंडा लेके, ग्रैस्प फर्मली इन हिज हैंड, बड़ी मजबूती से उसने डंडा पकड़ा। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने एकदम से धड़ाम से दरवाज़ा खोला और कहा कि सरेंडर, यानी जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ या सरेंडर कर दो, अपने हाथ ऊपर कर लो, उसने कहा। देन टू हिज अमेजमेंट, बड़ा हैरान रह गया वो देख के, ही रियलाइज दैट द रूम वॉज अपीयर टू बी एम्प्टी, रूम तो जो है वो एम्प्टी था, बिल्कुल एम्प्टी, खाली था, मतलब कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन्स देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉजन अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई साइन नहीं था, कोई भी वहाँ पे था नहीं, देयर वॉज नोबडी, कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, डेस्क ओपन था और मनी वहाँ से मिसिंग थी, यानी चोरी हो चुकी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन वो यही कहता रहा कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो असामान्य हो, जो अनकॉमन हो, बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, यानी देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ कहाँ पे, क्लर्जी मैन के घर पे लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई कहाँ पे, मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ में कुछ समय के बाद में। यानी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जो क्लर्जी मैन के साथ हुआ, जितना किसके साथ हुआ, मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ। कब, उसी दिन थोड़ी देर के बाद में, यानी पहले अर्ली मॉर्निंग क्लर्जी मैन के घर पे हुआ और उसकी थोड़ी देर के बाद में मिसेस हॉल के गेस्ट पार्लर में हुआ, उसके इन में हुआ। क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप टू अर्ली, वो सुबह जल्दी उठे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, देखा कि साइंटिस्ट का डोर है वो तो बिल्कुल खुला है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर ये क्या रहता था, बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, फ्यूरियस मतलब गुस्सा, उसको गुस्सा आता था अगर कोई उसके रूम में घुसता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब दोनों को, मिस्टर और मिसेस हॉल को लगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत गुड है, टू बी मिस्ड मतलब मिस नहीं कर सकते, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो है नहीं और जाके देख लेते हैं इसके रूम में क्या है और क्या करता है। दे पीप्ड राउंड द डोर, पहले तो दरवाजे के अंदर से उन्होंने झाँक के देखा, पीप्ड होता है झाँक के देखना। सो नोबडी, व्हेन कोई नहीं दिखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, डिसाइड किया कि जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। द बेड क्लोज वर कोल्ड, कपड़े बिल्कुल ठंडे थे, अब सर्दियों में कपड़े ठंडे हो जाएंगे अगर कोई इसमें बिस्तर में नहीं होगा तो। अगर इफ समबडी इज इनसाइड द बेड, बेड के अंदर है और रजाई के अंदर है तो रजाई कैसे गर्म होगी, लेकिन उसके बेड क्लोज तो कोल्ड थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, मतलब इस बात का सबूत था कि साइंटिस्ट बहुत देर पहले उठ चुका है, वो वहाँ अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसके कपड़े जो थे, रजाई सब ठंडे थे। एंड स्ट्रेंजर
Still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. लेकिन जो स्ट्रेंजर के कपड़े थे वो कहाँ थे? वो अभी भी जो कपड़े थे, बैंडेज थे, वो अभी भी वहाँ आसपास बिखरे हुए थे रूम के अंदर, यानी स्ट्रेंजर नहीं था, उसके कपड़े वहाँ पे थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक, उनके कान के पास में स्निफ होती है जब हम जुकाम में अपनी सांस बार बार ऊपर खींचते हैं, है ना, तो सांस लेने की एकदम से आवाज़ आई, स्निफिंग की आवाज़ आई कान के पास. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. एक मोमेंट के बाद क्या हुआ, एक बेड पोस्ट, जो उसका बेड था उसके किनारे के ऊपर, बेड पोस्ट क्या होता है, जो लेग होता है बेड का, जिसको हम चारपाई का एक पाया होता है, ऐसे बेड का एक पाया होता है, उसके ऊपर जो है ना टोपी रखी हुई थी, हैट रखी थी, वो उठी, लैपटॉप हवा में उठी एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. सीधे उसके मुंह पे आके लगी. इसके मुंह पे? मिसेस हॉल के फेस के ऊपर. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और एकदम से जो चेयर थी वो भी अलाइव हो गई, जिंदा हो गई. जिंदा होने का मतलब चेयर भी उठी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट टू हर. ये भी हवा में उठी और मिसेस हॉल को हिट किया. चार्ज करना मतलब हिट किया. लेग्स फॉरमोस्ट, उसकी जो टांगें थी सीधी मिसेस हॉल की बैक पे आके लगी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, वो मुड़े इन टेरर, डर के मारे, बहुत डर गए थे वो. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम. और उस चेयर ने दोनों को धक्का देके रूम से बाहर निकाल दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और उसके बाद में दोनों को बाहर निकाला और उस चेयर ने, या जैसे भी है, अंदर से बड़ी धड़ाम के साथ में स्लैम एंड लॉक द डोर का मतलब पटक के दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया, यानी दोनों को बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा लॉक हो गया, बंद हो गया एक्चुअली. मिसेस हॉल फेल डाउन, ऑलमोस्ट फेल डाउन इन स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स मतलब जैसे दोहरा सा पड़ जाता है, किसी का बैलेंस नहीं बनता है, बिल्कुल इतना इम्बैलेंस हो जाता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है, पता नहीं रहेगी क्या हो रहा है, बेहोशी की हालत में पहुंच गई वो. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड. उसको पूरा विश्वास हो गया, कन्विंस्ड मतलब विश्वास हो गया कि रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. हॉन्टेड मतलब बाय स्पिरिट्स मतलब उसमें कोई चुड़ैल है, भूत है ना, बुरी आत्माएं हैं. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज दिस. क्या लगा कि जो स्ट्रेंजर है, ही हैड कोज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, यानी उसको लगा कि स्ट्रेंजर ने उसके फर्नीचर के अंदर जो है स्पिरिट्स डाल दी हैं, इसलिए उसका फर्नीचर अपने आप उठ रहा है और उनको पीट रहा है, पटक रहा है. अब उनको ये तो नहीं पता ना कि इनविजिबल मैन अंदर ही था, ग्रिफिन वॉज इनसाइड द रूम, और वो क्या कर रहा था, चेयर से, हैट से, कपड़ों से उनको मार रहा था और उनको बाहर निकाल रहा था. लेकिन मिसेस हॉल को लगा कि कुछ उन्होंने कपड़ों में कर दिया, कुछ जादू, कुछ विच क्राफ्ट, कुछ टोना कर दिया है, जादू टोना कर दिया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर शी मोन्ड. रोते रोते कहती है, वो जो चेयर, जिस चेयर ने उसको हिट किया था, कि वो मेरी मम्मी उस चेयर में बैठती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी ना, और देखो ये मेरे खिलाफ उठ गई, उठ के और मुझे ही मार रही है. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट. अब आसपास के लोगों को लगा, नेबर में, कि जो समस्या थी किसकी वजह से थी, विच क्राफ्ट यानी जादू टोने की वजह से थी. बट विच क्राफ्ट और नॉट, जादू टोना या नहीं. When news of the burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Means यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि भले ही विचक्राफ्ट हो या नहीं हो, कुछ समय के बाद जब न्यूज़ ऑफ बर्गलरी मतलब चोरी एट द क्लर्जीमैन्स हाउस, क्लर्जीमैन जो गांव का प्रीस्ट था, उसके घर पे जो चोरी हुई थी, जब उसकी न्यूज़ नॉन हुई, लोगों को पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था, बिकेम स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, यानी लोगों ने उसके ऊपर शक करना शुरू कर दिया कि उसी का हाथ है, ही हैड अ हैंड इन इट, ज़रूर उसी ने किया होगा, यानी चोरी भी उसी ने की होगी और जो फर्नीचर के साथ हुआ वो भी उसी ने किया होगा. लोगों को विश्वास हो गया कि इसमें उसी का हाथ है. सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर. अब जो सस्पिशन था वो और ज़्यादा, सस्पिशन यानी शक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और जब उसने एकदम से पैसे दिए
तो शक और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कल तक तो उसके पास पैसा नहीं था और आज एकदम से उसने पैसे दे दिए, जबकि कुछ समय पहले चोरी हुई कहाँ पे, क्लर्जीमैन के घर पे। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यानी उसने एडमिट किया था, ये माना था कुछ समय पहले कि उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे कहाँ से आए, तो और डाउट हो गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजना, बुलाना। कांस्टेबल को, पुलिस वाले को बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, यानी वेट किए बगैर मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, यानी जब उसने रूम को जाके खटखटाया तो क्या हुआ, दरवाज़ा खटखटाया तो मिस्टीरियसली, बड़े रहस्यमय तरीके से वो बाहर आया एम्प्टी बेडरूम से, यानी कि सुबह तक तो वो था ही नहीं, रूम एम्प्टी था। जब उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग चेक किया था, अब वो कहाँ से आया एकदम से, यही उसको डाउट हुआ और वो बाहर आ गया। तो उसने क्या किया, उससे सवाल जवाब करने शुरू किए, क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी उसने। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि मैं जानना चाहती हूँ मेरी चेयर के साथ तुमने क्या किया, शी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इज इट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम्हें खाली रूम से बाहर कैसे आए तुम, यानी अंदर तो गए ही नहीं, हमने तो अंदर आते हुए देखा ही नहीं, तुम बाहर कैसे आए, क्योंकि रूम तो खाली था। एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए, यानी अंदर के तुम थे ही नहीं, आए कहाँ से। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड यानी बंद दरवाजे में, बंद रूम में कैसे घुसे। इस तरह के सवाल उसने उससे पूछने शुरू कर दिए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो तो पहले से गुस्सैल आदमी था, क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आए। नाव ही बिकेम फ्यूरियस, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया, फ्यूरियस। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, गुस्से में कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, वेरी वेल आई विल शो यू, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, पट्टियाँ उतारनी शुरू कर दी, विस्कर्स उतार दी, स्पेक्टिकल्स उतार दिए, एंड इवन नोज, वो नोज में निकाल दी। एंड इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू सो, टू डू दिस, 1 मिनट में ऐसा किया उसने। द हॉरिफाइड पीपल, हॉरिफाइड डरे हुए लोग, इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, और जितने भी लोग वहाँ थे किसको देख रहे थे, एक हेडलेस आदमी, यानी मुंह के ऊपर से, यानी गर्दन तक तो उसने कपड़े पहने थे, गर्दन के ऊपर का जितना भी हिस्सा था सारा का सारा उसने अनकवर कर दिया, पट्टियाँ उतार दी, हैट उतार दी, तब ऊपर का हिस्सा दिख नहीं रहा था, तो लोगों के लिए वो एक हेडलेस आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसका मुंह था ही नहीं। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल, ये एक जैफर थे जो कि कांस्टेबल थे, पुलिस वाले, नाउ अराइव, अब तक वो भी आ गए, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। सरप्राइज रह गया कि उसको जिसको अरेस्ट करना वो एक बिना सिर वाला आदमी, उसका तो सिर है ही नहीं। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर को ईजिली कोई उसकी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकता था। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, यानी कांस्टेबल ये मानता था कि अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट दे दिया, वारंट कर दिया, ऑर्डर दे दिया है किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए, तो वो आदमी ज़रूर अरेस्ट होना चाहिए, मस्ट बी अरेस्टेड, चाहे उसका हेड हो या नहीं हो, चाहे वो सिर वाला आदमी हो या बेसिर वाला आदमी हो। तो ऐसी सोच किसकी थी, जैफर्स की। जैफर्स वॉज वेरी ब्रेव पर्सन एक्चुअली। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सेंस एट द policeman, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, बड़ा रिमार्केबल अजीब सा ड्रामा सा हो गया, सीन हो गया, एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। जब पुलिसमैन एक ऐसे आदमी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर द अनदर, क्योंकि जब उसने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने क्या किया, एक के बाद एक कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अब जितने कपड़े उतार रहा था उतना ही वो इनविजिबल हो रहा था। तो ये बड़ा ही रिमार्केबल सीन हो गया। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, केवल एक शर्ट रह गई जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी, हवा में दिख रही थी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, यानी जल्दी ही जो कांस्टेबल था वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, किसके साथ, एक ऐसे आदमी के साथ जिसको वो देख नहीं सकता था। समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, देख ही नहीं सकता था, आदमी देख ही नहीं रहा,
उसके साथ वो स्ट्रगल कर रहा था, लड़ रहा था, उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, लोगों ने मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन सबको घुसे लगे, ब्लोज मतलब घुसे लगे, मुक्के लगे, और वो कहाँ से लग रहे थे ये पता नहीं कहाँ से लग रहे थे, लेकिन मुक्के लग रहे थे सबको फ्रॉम नोवेयर. इन दी एंड, अंत में क्या हुआ, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस. जेफर्स नॉक्ड अनकॉन्शियस मतलब वो गिर गया बेहोश होके. एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. जब उसने लास्ट अटैम्प्ट किया, प्रयास किया होल्ड पकड़ने के लिए अनसीन साइंटिस्ट को, यानी उस अदृश्य साइंटिस्ट को, इनविजिबल साइंटिस्ट को, जब उसने अपनी लास्ट ट्राई की तो उसने उसका बहुत ज़ोर से हिट किया और मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे वो इनविजिबल हो, वो बेहोश हो गए. देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. नर्वस एक्साइटेड, लोग एक्साइटेड हो गए, चिल्ला रहे थे, घबरा के चिल्ला रहे थे, पकड़ो उसको, होल्ड हिम, पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर दैन सेड. लेकिन ये तो कहना आसान था, करना मुश्किल था, क्योंकि कोई उसको देख नहीं पा रहा था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफिन अपने आप को फ्री कर चुका था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ हाथ डाले, कैसे पकड़े, कहाँ से पकड़े, हाथ से पकड़े, सिर से पकड़े, पैर से पकड़े. क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली इनविजिबल हो चुका था. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन था, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसको आप रीड करें, बड़े अच्छे से पढ़ें, सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.